Hello students, welcome to StudyGest, the world of educational solutions. StudyGest is a unique platform where we are provided with each and every kind of educational solutions. तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशंस, जो है मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है जानना, नॉट ओनली इन योर एकेडमिक्स पार्ट्स, ऑल्सो इन योर हायर स्टडीज व्हेन यू गो फॉर हायर एजुकेशन, देयर ऑल्सो मेंसुरेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. सो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू. तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट लाइक एरियाज and perimeter, what are areas, what are perimeters of different shapes like triangle and rectangle, rhombus and along with that parallelogram. आज के क्लास में we'll discuss about the area of trapezium, that is one type of quadrilateral, that is trapezium, and quadrilateral and polygon both, like how to determine the area and other parameters for such figures like trapezium, quadrilateral and polygon, right? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. Before starting the class, let me just remind you of the social media platform. Do subscribe our YouTube channel, that is StudyGest Academy. आप लाइक कर सकते हैं हम लोग का Facebook पेज जो है StudyGest Academy. You can join our Telegram channel also, StudyGest School from 7 to 10. As you can see, the link is provided over here, and this is the screenshot of the Telegram channel. ये Telegram channel ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि the notes, study material are provided on the Telegram channel. आपका होमवर्क वहां से होता रहेगा. You can raise your doubts, जो ये सबसे important है. If you have any doubts, you can raise your doubts on Telegram channel and it will be cleared in no time. Along with that, the live classes के module will be provided on the Telegram channel. So ये join करना बहुत important है. Join our Telegram channel as soon as possible. Also follow us on Instagram by writing StudyGest and join our WhatsApp group by writing this number. And for more information, log into our website, that is www.studygest.in. As you can see, this is the application of StudyGest. ये Google Play Store से आप लोग as soon as possible डाउनलोड कर लीजिए. Those courses that are offered by StudyGest you can access through the app. यहाँ पे आपको not only classes, but along with that you will get live classes, study notes, टेस्ट सीरीज, क्विज, एवरीथिंग. डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे आप डाउट भी अराइज कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड दिस ऐप. और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है आप लोग स्क्रीन में. तो भूलिए मत कि StudyGest ही डाउनलोड करना है, दूसरा कोई ऐप डाउनलोड करके आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा. तो ये लोगो देख लीजिएगा फोन में, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज हाउ आवर YouTube channel looks like, StudyGest Academy. Do subscribe it and press this bell icon so that if any free content is uploaded on the channel, you are notified with that as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like it and share it among with your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyGest. तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन कंटिन्यूड वो करते हैं. आज का कुछ और हम लोग देखेंगे जो फिगर्स है, जो है ट्रेपेजियम. ये देखेंगे इसका एरिया कैसे निकालते हैं. तो वी नो दिस इज अ ट्रेपेजियम, राइट, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. इट हैज टू पैरेलल साइड दैट आर नॉट ऑफ सेम लेंथ बट पैरेलल. लाइक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, सो इट इज लाइक ए पैरेलल टू बी, एंड ये जो है ये दोनों साइड आपका नॉन पैरेलल. अगर मैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी लिख देता हूं तो ए बी पैरेलल टू सी डी and AB not equal to CD, along with that AD not equal to BC, या हो भी सकता है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हो भी सकता है, मगर ये कभी इक्वल नहीं होगा. मगर AD और BC आपका इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे अगर AD इक्वल टू BC होगा तब. अगर ये दोनों साइड AD और BC इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है. इनकेस ये हो भी सकता है AD इक्वल टू BC या नहीं भी हो सकता है, मगर कभी नहीं ये पैरेलल कभी नहीं होगा. AD विल नेवर बी पैरेलल टू BC, ये कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे AB पैरेलल टू CD, एक कोई भी दोनों पेयर, एक पेयर आपका पैरेलल में रहता है ट्रेपेजियम में. अंडरस्टूड. अब उसका एरिया कैसे निकालेंगे अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया होगा. हाउ टू फाइंड द एरिया. सो व्हाट विल डू, विल हाफ मल्टीप्लाई हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. बोलिए पैरेलल साइड कौन सा है. यहां पे अगर ए और बी दिया हुआ है, दिस इज द लेंथ बी, दिस इज द लेंथ ए, सो इनटू हाइट. तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इनटू ए प्लस बी
देखिए ए प्लस बी आपका पैरेलल साइड्स है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों का क्या है, लेंथ ए है, इसका बी है, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, हाइट यहाँ पे एच, ये वाला हाइट लेंगे, ध्यान में रखिएगा ये हाइट नहीं है, ये जो स्लैंट है लेटा हुआ है, दैट इज अ स्लैंट हाइट, दैट इज स्लैंटेड, दैट इज नॉट द हाइट, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर ऊपर में जाएंगे, दैट इज इक्वल टू हाइट, सो विल टेक दैट हाइट, ठीक है, तो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अंडरस्टूड, वेरी इजी, कुछ नहीं है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आपको रटना नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट हार्ड, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो द फॉर्मूला एंड इन एग्जामिनेशन यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला इन नो टाइम, राइट, तो एकदम आपको प्रैक्टिस 100% करना है। मैथ्स में एक ही आपका मेन सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस के पीछे जो कारण होता है वो एक ही है, वो है आपका प्रैक्टिस, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ्लॉलेस होंगे आप मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू व्हाट इज ट्रेपीजियम एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। विल सी सम एप्लीकेशंस इन टुडेस क्लास आल्सो, सो लेट अस मूव अहेड। नाउ यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम लोग अभी देख लेते हैं। इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 450 मीटर स्क्वायर, the distance between the two parallel side is 10 meter and one of the parallel side is 15 meter, find the other parallel side, basic question है, तो let me draw a trapezium at first, this is a trapezium, नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, A B C D, ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे अगर B लिखेंगे तो इधर से फॉलो करेंगे, नहीं तो इधर, ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है, नाम ऑलवेज नेमिंग शुड बी ऑर्डर्ड, राइट, so it is given that distance between the two parallel side, this distance, that means height, h is given as 10 meter, okay, and one of the parallel side, मान लेते हैं कोई भी एक, छोटा या बड़ा, ये तो निकल जाएगा, ये मान लेते हैं 15 मीटर, कोई भी है, बड़ा है छोटा है वो हम लोग को अभी पता नहीं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा वाला जो है 15 से कम होगा, ये 15 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो वन ऑफ द साइड आइदर ए बी और बी सी, इट्स नॉट गिवन, it is given as 15 meter, find the other parallel side, तो to find the other parallel side, so given है ये जो ट्रेपीजियम का एरिया आपका है ये दिया हुआ है 450 मीटर स्क्वायर, so given data is area of ट्रेपीजियम का एरिया कितना दिया है, बोलिए 450 मीटर स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 450 मीटर स्क्वायर। नाउ हम लोग को पता है एरिया क्या होता है, हाफ into sum of parallel sides into height, मतलब distance between the two parallel sides is the height, ये दिया है 450। आप मान लेते हैं एक साइड जो है वो तो 15 दिया है, let the other side be x, एक तो 15 है, इसको मान लेते हैं हम लोग x, कोई भी एक साइड को हम लोग x मान लेते हैं, तो क्या होगा, हाफ इंटू सम क्या हो जाएगा 15 प्लस x इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट आपका 10 दिया है, इक्वल टू 450, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 15 प्लस x, 10 इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 450 इंटू 2 बाई 10, यहाँ से आपका सीधी सीधी 0 0 कट गया, तो इट विल बी 15 प्लस x इक्वल टू 45 इंटू 2 इज 90 एंड x विल बी हाउ मच, 90 माइनस 15, दैट इज 75 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 75, ठीक है, x यहाँ पे 15, तो ये वाला आपका 15 है और ये वाला आपका 75 है, ठीक है, ये 15 था, हम लोग ये वाला पकड़ के कर रहे थे, मगर ये छोटा साइड का दिया हुआ था, बड़ा वाला नहीं दिया था, तो अदर साइड विल बी 75, तो आंसर विल बी द अदर पैरेलल साइड इज 75 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, यू हैव टू राइट द यूनिट, ऑलवेज यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है यूनिट, हर एक पॉइंट में आपको लिखना है यूनिट, ठीक है, तो एक एक स्टेप आप फॉलो करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, स्टेप जंप नहीं करना है, यूनिट नहीं छोड़ना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ this was already told, now let us see how to find the area of general quadrilateral, तो हम लोग तो ट्रेपीजियम ये देख लिया, अगर ऐसे मेनली अगर ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल कुछ भी शेप का दे दे तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे,
तो ये एक क्या करेंगे, ये जो ऐसे मान लीजिए ABCD यहाँ पे एक आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो व्हाट विल डू, विल स्प्लिट इट इनटू ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लिए। आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। जैसे एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेकंड हाफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC, ये बेस है ना, इंटू हाइट। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है ट्रायंगल का, ये ABC का, ये वाला बेस है AC, और हाइट क्या दिया H1, तो ये हो गया पहला ट्रायंगल का एरिया। प्लस सेकंड ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू H2 इंटू AC। यहाँ पर भी देखिए बेस ये है ना, ये AC बेस है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है, उसका सॉरी फॉर दैट, तो ये हो जाएगा आपका H2। तो ये दोनों आपका जो एरिया है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल क्वाड्रिलेटरल का क्वाड एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया आपका निकल जाएगा। अंडरस्टूड, कैसे आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया निकालना है, जस्ट स्प्लिट कर देना है ट्रायंगल के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, फिर स्प्लिट कर सकते हैं, हम दिखाऊंगा मैं और भी एप्लीकेशन। ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जैसे दिया रहेगा। अगर पॉलीगॉन है तो आपको, ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो आपको ट्रायंगल में ही करना है, ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि 4 साइड है ना, ट्रायंगल ही बनेगा। अगर पॉलीगॉन है, मान लीजिए ऑक्टागॉन है या डेकागॉन है, 10 साइड है, 8 साइड है, तो उसमें आप स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है जब पॉलीगॉन हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या देखे, ट्रेपीजियम देखे, फिर आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल देखे, कैसे इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, जब बता दिए तो उसका एप्लीकेशन भी देखना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप देखिए AC से अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, जो होगा ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों एरिया को मैं अलग अलग करके प्लस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड ABCD, पूरा नहीं लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल आपको एग्जामिनेशन में लिखना है पूरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, विल बी कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल का आप एरिया प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ हाफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट दिया है 2.5, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC फिर से बेस है इंटू 3.5। तो यहाँ पे AC का कितना है डिस्टेंस, ये दिया हुआ है AC 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बैठा देंगे AC का जगह पे हाफ इंटू 8 इंटू 2.5 प्लस हाफ इंटू, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, हाफ इंटू 8 इंटू 3.5। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 यहां से कट के ये 4 हो जाएगा, 2 यहां से कट के ये 4 हो जाएगा। तो 4 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, 2.5 प्लस 3.5, तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 3.5, 4 इंटू 3.5 प्लस 2.5, 3, 4, 5 एंड 6, इट विल बी 6 4 जा 24 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा। सो आपको आंसर में लिखना है, सो द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड, आपको फुल लिखना है क्वाड एग्जामिनेशन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लास्ट में आंसर करके लिखेंगे पूरा स्टेप दिखा के, तभी आपको मिलेगा मार्क्स, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का दिखा दिया, क्वाड्रिलेटरल का दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक रोम्बस का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, चलो कर देते हैं। रोम्बस कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। रोम्बस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद है रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, एरिया का था, यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर विद लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस का हर एक साइड इक्वल रहता है कि नहीं, ABCD, उसका BD ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, एक आपका दिया है 15, एक दिया है 20। मान लीजिए यहाँ पे AC दिया है 15 एंड BD यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर। आप पूछा एरिया क्या है रोम्बस का, तो आपको लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है,
area of rhombus, what it will be, half into diagonal 1 into diagonal 2. ये था ना, हाफ इंटू डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 15 और डायगोनल 2 कितना है 20. डायगोनल 1 मान लेते हैं ये d1 है, ये d2 है मान लेते हैं, ठीक है. तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये 15 इंटू 20, 2 कटेगा इसको 10 पे, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD. सो यहाँ पे लास्ट में लिखना है आंसर में कि एरिया ऑफ रोम्बस ऐसा लिखना है, और इस रोम्बस ABCD इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऐसा आपको लास्ट में लिखना है. ठीक है, अंडरस्टूड कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे. तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ये इस क्लास में नहीं है, लास्ट क्लास का टॉपिक है, एक यहाँ पे दे दिया ताकि आपका रिवाइज होता रहे. अगर लास्ट क्लास आप नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए पहले, मेंस्ट्रुएशंस 1 में, वहां पे हम लोग रोम्बस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब डिस्कस किए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन. पॉलीगॉन का क्या करेंगे, अभी जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल का दिखा रहा था, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर, ऐसे एक फिगर है, इसको मैं क्या कर रहा था, ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड करके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल निकाल रहा था. वैसे पॉलीगॉन में क्या करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड इनटू नॉन ओवरलैपिंग रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स whose area can be found easily and the area of polygon will be equal to the sum of the areas of non overlapping parts. मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, पेंटागन है ना, 3 4 5 6 हेक्सागन है. ठीक है, 6 साइड्स है, तो पेंटा मतलब 5. सो ये अगर 6 साइड दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, ये एक पैरेललोग्राम इसको कर सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम इसको, ये रोम्बस इसको कर सकते हैं, इसको एक कर सकते हैं, ये तीनों फिगर का निकाल सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे एक देखिए ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी का ये ट्रायंगल डिवाइड कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, और छोटा छोटा ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 1 ट्रायंगल, 2nd ट्रायंगल, 3rd ट्रायंगल, 4th ट्रायंगल, 5th 6th ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर सकते हैं. अलग अलग से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और टोटल को सम कर देंगे, तो आपका टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकल जाएगा, POLYGON, ये आपका टोटल एरिया निकल जाएगा. छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे प्लेन फिगर्स में. स्टार के आपका हो सकता है ये स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, या कुछ भी आपका ट्रायंगल हो. तो ये आपके छोटा छोटा प्लेन फिगर्स में हम लोग इसको डिवाइड करके जब एड अप कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा. छोटा छोटा में इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए, टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया निकलेगा ना इसका. ये टोटल आपका जो इसका जो पॉलीगॉन का टोटल एरिया है वही निकलेगा ना. तो ऐसे करते करते हम लोग सम ऑफ पॉलीगॉन निकाल सकते हैं, या एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकाल सकते हैं. सम कर देंगे, एरिया निकाल के, छोटा छोटा पार्ट का एरिया निकाले, फिर सम कर दिए तो एरिया ऑफ टोटल पॉलीगॉन आ जाएगा. एरिया ऑफ टोटल पॉलीगॉन आ जाएगा. ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ स्मॉल फिगर्स. ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. हाँ, ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, यहाँ पे मैं दिखाया ना अभी, यहाँ पे देखिए रोम्बस फॉर्म हो रहा था, कुछ भी अगर इक्वल साइड है तो रोम्बस होगा. ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर सकते थे कुछ भी. तो स्मॉल फिगर्स को हम लोग उसको बांट दिए और एरिया निकाल दिए, एड अप कर दिए, तो टोटल पॉलीगॉन का एरिया निकल गया. समझ में आ रहा है ना. कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो. अगर कुछ डाउट रहेगा हम लोग वो एज सुन एज पॉसिबल आपको क्लियर करा देंगे. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप दैट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now you have to find the area of polygon ABCD if AD is 10 cm, A is 7 cm and AB is 2 cm. कितना दिया है, AD is 10 cm, AD कौन सा है, ये टोटल है आपका 10 cm. AS कितना है आपका 7 cm, तो ये 3 cm हो गया. एंड AP कितना दिया है 2 cm. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है. ये क्या बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए ये दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों एकदम यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये नॉन पैरेलल साइड है. तो बीच में क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रेपीजियम. ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, और ये दोनों आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका ट्रायंगल हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCD is equal to area of triangle ABP, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस ट्रेपीजियम क्या है, A नहीं है,
ट्रेपेजियम का क्या है, PBCS प्लस ट्रायंगल कितना होगा, CSD। तो ये आपका हो जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो एक फर्स्ट तो आपका कितना हो गया, ये देखिए ये हाइट है और बेस यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका बेस देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल का पहले निकाल लेंगे, फिर पॉलीगॉन का निकाल लेंगे। पॉलीगॉन का देखिए इसका जो दोनों का जो पैरेलल साइड का हाइट होगा ये कितना दिया है, ये वाला होगा, है कि नहीं, ये वाला दोनों, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल साइड का जो डिफरेंस है ये हाइट हो जाएगा ना तब, तो 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का ABB का हाफ इंटू बेस कितना है, 2 है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना है एग्जाम में कि बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको एक वैल्यू बैठाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप वहां पे वो लिख दोगे, सर ने लिखा था चलो ऐसा लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, टोटल करना है। एक भी स्टेप जंप किए तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, स्टेप जंपिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम पैरेलल साइड का सम कितना है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 इंटू हाइट कितना है 5, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए बेस कितना है इस ट्रायंगल का CDS में, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, हाफ इंटू 3 इंटू 3। यहां से क्या कर सकते हैं, हाफ को बाहर कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 फर्स्ट 2, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, ये करेंगे आ जाएगा। तो क्या होगा, हाफ इंटू 2 2 = 4 प्लस 5 5 = 25 प्लस 3 3 = 9, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 4 = 38, है कि नहीं। तो क्या होगा, हाफ इंटू 38, तो इसको काट देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन ABCD कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ पॉलीगॉन कितना होगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCD = 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपको ऐसे आंसर लिख के आना है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो this is how we calculate the area of polygon. So we have seen trapezium, we have seen quadrilaterals, general quadrilaterals, and we have seen how to find the area of polygon. चलिए और थोड़ा applications देख लेते हैं about this all topics. The area of trapezium is 34 centimeter square. Length of one of its parallel side is 10 centimeter and height is given as 4 centimeter. Draw कर लेते हैं पहले. This may be the trapezium A, B, C and D. What is the distance given as height? हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड मान लेते हैं, इसका देते हैं, देख लेंगे बड़ा या छोटा दिया है हम लोग को नहीं पता, एक साइड मान लेते हैं पहले, इसको दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, बहुत इजी है। एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को दिया है गिवन डेटा इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD = 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या पूछा है, आप दिया है आपका लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस हाइट, डायरेक्टली लिखता हूं, हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया में बैठा दीजिए, एरिया क्या है होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मान लेते हैं इसको x, ठीक है, एक यहाँ पे x मान लेते हैं, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट = 34, ये दिया हुआ है। साफ क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा 10 + x इंटू हाइट कितना है 4 = 34। अब यहाँ पे क्या होगा 2 से ये 4 कट जाएगा 2 पे, और ये क्या होगा 10 + x = 34/2, 2 17 = 34। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x = 17 - 10 = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब छोटा वाला साइड है ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हेंस लास्ट में आपको आंसर में लिखना है द साइड लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर।
ये आपको लास्ट में आंसर में लिखना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको एप्लीकेशन देखने में मिलेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस है, बताइए आप लोग बताइए, कुछ है इसमें जानने को? बस कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो आपको प्रैक्टिस करना है ताकि याद रहे, दिमाग में वो बैठा रहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, द साइड अलोंग द रिवर ऑफ द प्ले पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड ऑफ द रोड इज द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक उसका फील्ड है मोहन का, ठीक है, ये मोहन का फील्ड है। तो यहाँ पे नीचे से एक नदी बह रहा है, कौन सा नदी बह रहा है, ये गंगा, गंगा बह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका NH7 नेशनल हाईवे 7 या कोई भी हाईवे मान लीजिए, एक रोड है, ठीक है। तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा बस मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। एक रोड ऊपर से गया है और एक रिवर है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो रोड का अगर यहाँ पे मैं x मान लेता हूं, साइड का जो लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2x इतना, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज, आपको एरिया दे दिया गया है 10500 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। इसका क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब हाइट दे दिया है, ये हाइट है, हाइट कितना है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं पहले कैसे हम लोग ये करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूं। तो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड क्या है जो मोहन जी ने लिया है, वो है 10500 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे है रोड वाला साइड, रोड साइड लेंथ क्या है फील्ड का, x ले लिए, एंड रिवर साइड क्या है ले रहे हैं हम लोग, रिवर साइड लेंथ क्या ले रहे हैं हम लोग, इक्वल टू x, इक्वल टू 2x हो जाएगा, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट AC मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और अब हाइट कितना दिया है, हाइट मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो हाइट ले लेता हूं, हाइट कितना दिया है 100 मीटर। अब बैठा दीजिए एरिया में, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मैं लिख देता हूं सम ऑफ PS कर देता हूं, पैरेलल साइड का बहुत बार लिख चुका हूं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटू हाइट H लिख देता हूं, ठीक है। ये कितना दिया है 10500, ठीक है। आप पूछा गया है लेंथ अलोंग द साइड ऑफ द रिवर 2x क्या है, x निकल जाएगा तो 2x निकाल पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड है x प्लस 2x इंटू हाइट कितना है 100 इक्वल टू 10500। अब 100 को इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या बचे, क्या बच गया, 2x प्लस x इज 3x, 3x इक्वल टू, मैं क्लियरली लिख देता हूं, 3x इज इक्वल टू 10500 इंटू 2/100, 0 यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब 3x यहाँ पे x लिख सकते हैं, x क्या होगा, x हो जाएगा 105 इंटू 2/3। अब 3 कटेगा, हाँ कटेगा, 3 3 9, 1 10, 15 3 5 35, 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 70 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, मीटर, 70 मीटर। अब पूछा गया है लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ये मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे मैं क्लियरली लिख पाऊं, आपको ये दिखा पाऊं। ये मैं थोड़ा ड्रॉप कर देता हूं, 1 मिनट, लेट मी ड्रॉप दिस। सो तो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर गंगा, गंगा है ना, अभी मैं बोला था गंगा रिवर है ना, तो रिवर क्या होगा 2x मतलब 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर। तो आंसर हो गया आपका 140 मीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ठीक है। ऊपर वाला साइड कितना है 70, नीचे वाला 140। अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। घबराना नहीं है, यहाँ पे मैं अगर रिवर में या दिया नहीं रहता है, आपको ड्रॉ कर लेना है, आपको समझना है कैसा सिनेरियो दिया है। हर एक टाइम में आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, आपको समझ लेना है, रफ एक स्केच बनाना है खुद से।
अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको ये क्लियर हो जाएगा, इजीली आप कर पाओगे। ट्राई करके देखना, ठीक है? हर एक टाइम में आपको डायग्राम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ विल सॉल्व और विल फाइंड, विल गेट द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन और द एप्लीकेशन ऑफ अ पॉलीगॉन। सो यहाँ पे दिया है टॉप सर्फेसिस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब 8 साइड है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सर्फेस। तो इसका एरिया निकालना है। तो ये देखिए 5 है, ये ऑक्टागन में हर एक साइड इक्वल है, 5, ये भी 5, ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है? तो हर एक साइड इसका 5 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करता हूं A B C D E F G H, तो A B C H, यहाँ पे A B C H जो हो रहा है ट्रेपेजियम हो रहा है, ठीक है? नीचे में भी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो क्या होगा D E F G, ये भी एक ट्रेपेजियम हो रहा है, ठीक है? ट्रेपेजियम हो रहा है ना। और C D G H ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। मैं बोला था एक रेगुलर फिगर में आपको ये बांटना है, हमेशा ये जरूरत नहीं है हमेशा ये ट्रायंगल ही हो। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रेपेजियम, एक रेक्टेंगल आ रहा है। तो इसका तीनों का मैं एरिया लिख के अगर सम कर दूंगा तो टोटल सरफेस का हम लोग को मिल जाएगा। तो वही करते हैं, चलिए। यू नो एवरीथिंग, राइट? यू नो एवरीथिंग। आपका, हम मेरे से अच्छा आप लोग फट से आपका दिमाग में ये आ गया होगा। आ गया ना? कमेंट करके बताइए कि देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है सब, तभी मैं बोल सकता हूं कि आपको एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है? तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ऑक्टागन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? डायरेक्टली मैं लिखता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको तो पता ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे क्या है, एक साइड आपकी 11 दिया है और दूसरा साइड आपका 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5 + 11 इंटू हाइट कितना है 4, इतना से यहाँ 4 है ना। सेम सिनारियो नीचे में होगा, नीचे में भी होगा ये इसका, ठीक है? प्लस रेक्टेंगल का क्या है? रेक्टेंगल का 5 × 11, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 5 × 11, प्लस यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको लिखना है पूरा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना है, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड ट्रेपेजियम इतना है, फिर आपको वैल्यू बैठाना है। यहाँ पर भी क्या होगा 5 + 11, एक 11 है, ये भी 11 होगा ना, और ये 5 होगा इंटू कितना, ये भी डिस्टेंस आपका 4 होगा, क्योंकि ये इक्वल फिगर है। तो मतलब सेम टाइप का है, सेम, नीचे में भी सेम है ऊपर में भी सेम है, तो तभी ना रेगुलर है ना, तभी ना रेगुलर बोला है। रेगुलर बोला इसलिए मतलब हर एक साइड इक्वल है और एकदम सेम शेप का है, ठीक है? तो इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते। इरेगुलर में हम लोग नहीं निकाल पाते। रेगुलर बोला है इसलिए हम लोग निकाल पा रहे हैं। पॉलीगॉन देगा तो आपको रेगुलर ही देगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 + 11 कितना होगा, 11 + 5 इज 16 इंटू 4 प्लस 5, 11 × 5 55 प्लस हाफ इंटू, ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भी ब्रैकेट में डाल देता हूं और ये भी ब्रैकेट में डाल देता हूं, 16 × 4। तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, तो क्या हो जाएगा 32 + 8 4 32 + 55 + 32, यानी कि 64 + 55। तो 64 + 55 कितना होता है? डायरेक्टली यहाँ पे रफ में हम लोग कर लेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलूंगा मैं, रफ में दिखा देता हूँ। 64 + 55 क्या है 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 119, तो ये हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ऑक्टागन गिवन इन द फिगर। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं आपका जो एरिया है, मतलब रेगुलर फिगर्स का, जो पॉलीगॉन का आपका रेगुलर फिगर है उसका हम लोग एरिया ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, लास्ट में लिखना है आपको आंसर में, द एरिया ऑफ द गिवन रेगुलर ऑक्टागन इज 119 मीटर स्क्वायर, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। Understood? So that was all about today. If you have liked the session, make sure you like, share and subscribe. Also share it among with your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyGest. In next class, we'll discuss some more concept of mathematics. Till then, take care and goodbye.